بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول پرنس ونچل بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مین گیٹ سے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں ٹائیگر پر پڑیں وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ بڑا انتظار دکھایا فیروزہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ڈیئر، دراصل پاپا سے ایک غیر ملکی ملنے آ گیا تھا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فیروزہ معذرت آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ غیر ملکی اتنا پسند آ گیا تھا کہ ہم بھول ہی گئے، ٹائیگر نے روٹنے والے انداز میں کہا۔ ارے ارے، تم تو ناراض ہو گئے۔ بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کو تم پر ترجیح دوں؟ جب سے تمہارے ساتھ دوستی ہوئی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنا آئیڈیل پا لیا ہے۔ فیروزہ نے بڑے سنجیدگی سے مگر جذباتیت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، اور ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کو کافی کا آرڈر دے ڈالا۔ تھینک یو ڈیئر، مگر مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ غیر ملکی نے ایسی کون سی باتیں کی جو اتنی دلچسپ تھیں کہ تم مجھے بھول گئی؟ ٹائیگر نے دونوں کونیاں میز پر ٹیکتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو بھائی، ایک دفعہ معذرت کر لی، تم تو ایک ہی بات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو۔ وہ غیر ملکی پاپا سے کسی ایئرپورٹ پر ہونے والے کسی اہم واقعہ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، شاید کوئی فوجی آدمی تھا۔ فیروزہ نے لاتعلقی سے جواب دیا، اور ٹائیگر کے ذہن میں ایک نامعلوم سے خدشے نے سر ابھارا۔ فیروزہ کا باپ فوج میں ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز تھا۔ اس کا کسی غیر ملکی سے ملنا اور فوجی نوعیت کی باتیں کرنا ٹائیگر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر وہ فیروزہ کو چوکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، اور باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے پوچھا، کون سے ایئرپورٹ کے متعلق بات ہو رہی تھی تمہارے پاپا اور اس غیر ملکی میں؟ معلوم نہیں، فیروزہ نے ناگوار سے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ کافی پی کر وہ دونوں اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھ گئے۔ 2 راؤنڈ لگانے کے بعد جیسے ہی اپنی میز پر پہنچے ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کی میز پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی شاندار صحت کا مالک تھا۔ ہیلو جان، آپ یہاں کیسے؟ فیروزہ نے چونک کر پوچھا۔ بس ویسے ہی، تم نے ٹپ ٹاپ کی تعریف کی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا، غیر ملکی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ان سے ملیے، مائی فرینڈ مسٹر آفریدی، اور آپ ہیں مسٹر جان، پاپا کے دوست، جن کی دلچسپ باتوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی، فیروزہ نے ٹائیگر اور غیر ملکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا، اور پھر وہ سب میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ٹائیگر نظروں ہی نظروں میں جان کو ٹٹول رہا تھا۔ جان کی شخصیت ٹائیگر کو کچھ مشکوک سی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ جان نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک فیروزہ سے مخاطب ہو کر کہا، مس فیروزہ، آپ کے پاپا نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، اگر مسٹر آفریدی ہمیں چند لمحے عنایت کر دیں تو؟ جان نے ٹائیگر کی طرف معذرت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ٹوائلٹ تک ہوا ہوں، آپ بات کریں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹوائلٹ ہال سے ہٹ کر گیلری میں تھا۔ وہاں جا کر ٹائیگر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے ہال صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جان نے فیروزہ کو سرگوشی کی، اور فیروزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر جان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ جان کا رخ پارکنگ شیڈ کی طرف تھا۔ ٹائیگر نے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا، صرف اس امید پر کہ بوریت سے تو نجات ملے گی، اور شاید کوئی دلچسپ بات بھی معلوم ہو جائے۔ ٹائیگر نے اپنی موٹر سائیکل جان کے تعاقب پہ لگا دی، اور بڑی ہوشیاری سے تعاقب کرتا رہا۔ جان کی کار شہر کی مختلف کالونیوں کا چکر لگانے کے بعد ماڈل ٹاؤن کی ایک عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل پر کوٹھی کا راؤنڈ لگایا، اور پھر وہ کوٹھی کے عقب میں آ گیا۔
इसने मोटरसाइकिल एक दरख्त के नीचे रोकी और खुद तेजी से कोठी की उगवी दीवार की तरफ बढ़ गया। उगवी दीवार के साथ ही एक दरख्त था। टाइगर ने इधर उधर देखा और फिर किसी को ना पाकर वो तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया। चंद ही लम्हा बाद दीवार पार करके कोठी के पाए बाग में मौजूद था। टाइगर ने जेब में रिवॉल्वर चेक किया और फिर रेंगता हुआ इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो छत पर लेटा हुआ था। छत के कोने से सीढ़ियां नीचे जा रही थी और फिर वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे एक गैलरी में आ गया। यहाँ मुख्तलिफ कमरों के रोशनदान थे। टाइगर ने रोशनदान चेक किए और फिर एक कमरे में से जॉन बैठा नजर आया। इसके सामने सफेद बालों वाला एक गैर मुल्की मौजूद था। टाइगर ने रोशनदान पर हल्का सा दबाव डाला और रोशनदान जरा सा खुल गया। अब इनकी बातों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नंबर 11, तुमने सही आदमी का इंतखाब किया है। कर्नल हबीब एयरपोर्ट का इंचार्ज है। अगर वो हमसे तावन पर आमादा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सफेद बालों वाला जॉन से कह रहा था। बॉस, आपका ख्याल सही है। मैंने कर्नल हबीब से बातचीत कर ली है। कर्नल हबीब ने 2 लाख रुपया मांगा है, जॉन ने जवाब दिया। ठीक है, हम इसे 2 लाख रुपए अदा करेंगे, मगर हमें भारी रकम का सही मुआवजा मिलना चाहिए, सफेद बालों वाले ने बावकार लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। कर्नल हबीब जुआ खेलने का आदी है और इस सिलसिले में वो खासा मकरूज हो चुका है, इसलिए वो हर कीमत पर हमारा साथ देगा। मैंने आज शाम होटल जैकार्ड में इससे मुलाकात तय कर ली है। इस मुलाकात में वो सब कुछ तफसील से बता देगा और हमें जो सहूलतें चाहिए हम इससे तय कर लेंगे। आधी रकम इसे आज शाम को दे देंगे और आधी मिशन शुरू होने से चंद घंटे पहले, जॉन ने जवाब दिया। ठीक है, आज शाम तफसीलात तय करने के बाद हम बॉस को मुकम्मल रिपोर्ट दे देंगे, सफेद बालों वाले ने कहा। तो आप चलेंगे ना? जॉन ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मगर मेकअप में। मैं शाम को होटल में ही पहुंच जाऊंगा। तुम ऐसा करना, जो केबिन मखसूस कराना, इसके साथ वाले केबिन में भी अपने आदमी बिठा देना ताकि कोई दूसरा आदमी सुनगिन ना ले सके, सफेद बालों वाले ने कहा। और जॉन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। टाइगर भी खामोशी से पीछे हट गया। इसके चेहरे पर गहरे तशवीश के आसार थे। इसे फिरोजा के बाप कर्नल हबीब के मुतालिक अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो 2 लाख के लिए बिक गया होगा, मगर अब वो अपने कानों से सब कुछ सुन चुका था, इसलिए यकीन करना भी पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो कोठी से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंच गया था। मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ वो सीधा अपने फ्लैट पर गया और वहां जाकर इसने अलमारी से ट्रांसमीटर निकाला और इमरान को कॉल करने लगा। यस, इमरान स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी और टाइगर ने कर्नल हबीब और गैर मुल्कियों की तमाम बातचीत से उसे आगाह कर दिया। ठीक है, तुम रात को इनकी तफसीलात मालूम करो और फिर मुझे बताना। तफसीलात मालूम करने के बाद ही इसके मुतालिक मजीद फैसला होगा, ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और राब्ता खत्म कर दिया। टाइगर ने तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर दोबारा अलमारी में रख दिया और खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे बाद वो मेकअप करके बाहर निकल आया और फिर इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और होटल जैकार्ड की तरफ रवाना हो गया। वो इन लोगों से पहले वहां जाकर कोई ऐसा इंतजाम करना चाहता था जिससे वो आसानी तमाम तफसीलात से आगाह हो सके। इसे मालूम हो गया था कि ये लोग 3-4 केबिन इकट्ठे बुक कराएंगे ताकि इत्मीनान से बातचीत कर सके। होटल जैकार्ड पहुंचकर इसने मोटरसाइकिल पार्किंग शेड में खड़ी की और खुद होटल के उगवी रास्ते से होता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। यहाँ का चीफ वेटर इसका वाकिफ था, चुनांचे जल्द ही इसने चीफ वेटर को ढूंढ लिया। हेलो मिस्टर काशानी, आज कैसे इधर का रास्ता भूल पड़े? चीफ वेटर ने मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। जोडी, आज मैं एक खुसूसी काम से आया हूँ। ये बतलाओ शाम को केबिन्स पर किसकी ड्यूटी होगी? वेटर नंबर 4 की। क्यों, क्या बात है? जोडी ने संजीदगी से पूछा। और तो कोई खास बात नहीं, दरअसल मैंने आज एक फ्रेंड को टाइम दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि केबिन में मुदाखलत कम से कम हो। अच्छा अच्छा, समझ गया, स्पेशल प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, मैं 4 नंबर को हिदायत दे दूंगा, वो ख्याल रखेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, जोडी ने हंसते हुए कहा। थैंक यू, टाइगर ने कहा और फिर आगे बढ़ गया। और फिर केबिन के नजदीक इसे 4 नंबर वेटर नजर आ गया। ये एक नौजवान शख्स था और टाइगर को खुशी हुई कि इसका कदोकामत इससे मिलता जुलता था। शाम तक वो हॉल में बैठा वक्त गुजारता रहा और फिर उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के करीब ही स्टोर रूम था। टाइगर खामोशी से स्टोर के दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा और जल्द ही इसे वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। 4 नंबर वेटर इसे राहदारी में अकेला नजर आ गया। हेलो, बात सुनो दोस्त, टाइगर ने उसे आहिस्ता से अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। और वेटर इसकी तरफ बढ़ता चला गया। फरमाइए, वेटर ने मौदबाना लहजे में कहा।
टाइगर ने 10 का नोट इसके हाथ में रखा और फिर सरगोशियाना लहजे में कहा, इधर स्टोर में मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरा काम हो गया तो 50 और दूंगा। 50 रुपए का सुनकर वेटर की आंखों में चमक आ गई। इसने स्टोर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही टाइगर इसकी तरफ झपका और दूसरे लम्हे इसका हाथ बिजली की सी तेजी से उठा और वेटर की कनपटी पर जर्ब लगते ही वो फर्श पर लुढ़क गया। एक ही जर्ब इसके लिए काफी हो गई थी। टाइगर ने बड़ी फुर्ती से अपना लिबास उतारकर वेटर को पहनाया और फिर इसकी वर्दी खुद पहन ली। इसने अपनी जेबों में मौजूद सामान वर्दी की जेबों में मुंतकिल किया और फिर एक छोटा सा बॉक्स खोलकर इसने वेटर का मेकअप करना शुरू कर दिया। इसके हाथ इंतहाई तेज और महारत से चल रहे थे। 10 मिनट बाद वो वेटर का रूप मुकम्मल तौर पर धार चुका था। इसने एक नजर बेहोश पड़े वेटर पर डाली और फिर ट्रे उठाकर वो बाहर निकल आया। किचन का एक राउंड लगाकर जब वो हॉल में पहुंचा तो इस्तकबालिया क्लर्क ने उसे बुलाकर कहा कि केबल नंबर 3, 4 और 5 रिजर्व हो चुके हैं, इन पर रिजर्वेशन का कार्ड लगा दो। और टाइगर से हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। इसने इन तीनों केबनों पर रिजर्वेशन कार्ड लगा दिए और फिर खुद दरमियानी केबन में दाखिल हो गया। वो समझ गया था कि खुफिया मीटिंग केबन नंबर 4 में होगी। केबन के अंदर दाखिल होते ही इसने जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिबिया जिसके साथ प्लास्टिक टेप मौजूद था केबन के दरमियान में रखी हुई मेज के नीचे चिपका दिया और फिर केबन का पर्दा बराबर करते हुए बाहर निकल आया। हॉल का एक राउंड लगाकर वो दोबारा किचन की तरफ आया और इधर उधर देखता हुआ स्टोर रूम में घुस गया। वेटर अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। टाइगर ने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक बार दोबारा लिबास और मेकअप तब्दील करना शुरू कर दिया। पहले वाले लिबास और मेकअप में आकर इसने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बेहोश वेटर की मुट्ठी में दबाकर खुद स्टोर से बाहर निकल आया। इसने इधर उधर देखा और फिर तेजी से होटल से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद इसकी मोटरसाइकिल तेजी से कर्नल हबीब के बंगले की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। इसने कर्नल हबीब के बंगले के करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दिया और खुद उतरकर एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। दरअसल वो कर्नल हबीब को खुद चेक करके होटल तक जाना चाहता था, क्योंकि इसे खदशा था कि कहीं ऐन मौके पर मुजरिमों ने प्रोग्राम या मीटिंग का मकाम तब्दील ना कर दिया हो। इसमें यही एक खूबी थी कि वो मामले के किसी भी पहलू को नजरअंदाज करने का आदी नहीं था। इसलिए ट्रांसमीटर सेट करने के बाद इसने वेटर का मेकअप खत्म कर दिया था ताकि वो सही तरीके से कंट्रोल कर सके। अभी से वहां खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि बंगले का गेट खुला और दूसरे लम्हे एक छोटी सी कार बाहर आ गई। कार को कर्नल हबीब खुद चला रहा था और कार में अकेला था। जब कर्नल की कार आगे बढ़ गई तो टाइगर ने इसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। कर्नल की कार जब होटल जैकार्ड के कंपाउंड में दाखिल हुई तो टाइगर ने इत्मीनान की सांस ली और फिर जब कर्नल कार पार्किंग शेड में खड़ी करके होटल के मेन गेट में दाखिल हो गया तो टाइगर भी आगे बढ़ा। इसने जेब में हाथ डाला और फिर हाथ को मुंह पर इस तरह फेरा जैसे वो मुंह साफ कर रहा हो, मगर जब इसका हाथ चेहरे से हटा तो इसका हुलिया तब्दील हो चुका था। घनी मूछें और नाक में मौजूद स्प्रिंगों ने खासा फर्क डाल दिया था। इसने ये रेडीमेड मेकअप इसलिए किया था कि 4 नंबर वेटर इसे पहचान कर कोई हंगामा ना कर दे। हॉल में दाखिल होकर इसने इधर उधर देखा तो 4 नंबर केबिन पर खाली नहीं है कि तख्ती लगी हुई थी। इसे साफ जाहिर था कि कर्नल केबिन में मौजूद है। हॉल में कई मेजें मौजूद थी। टाइगर ने एक इंतहाई कोने वाली खाली मेज मुंतखब की और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसने जेब से एक छोटा सा आला समात नुमा निकाल कर कान में जमा दिया, जिसकी तार इसकी जेब में जा रही थी। क्योंकि ऐसे आले बहरे काफी तादाद में लगाए रखते हैं, इसलिए इस पर कोई शुबा नहीं कर सकता था। इसने जेब में मौजूद रिसीवर सेट का बटन ऑन कर दिया और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। जब वेटर इसके करीब आया तो इसने इसे कॉफी लाने का हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद इसने देखा कि हॉल में 6 गैर मुल्की दाखिल हुए। इनमें वो सफेद बालों वाला और जॉन भी मौजूद था। सफेद बालों वाले के चेहरे पर घनी दाढ़ी लहरा रही थी। टाइगर समझ गया कि वो मेकअप में है। जॉन और इसका बॉस सीधे 4 नंबर केबिन में चले गए। बाकी 4 गैर मुल्कियों ने साथ वाले केबिन संभाल लिए। हेलो कर्नल, हमें देर तो नहीं हुई? टाइगर के कानों में आवाज आई। नहीं, मैं अभी आकर बैठा हूँ, कर्नल की आवाज सुनाई दी। इस बैग में 1 लाख रुपया मौजूद है। अब आप हमें तफसीलात बताइए, गैर मुल्की ने नरम लहजे में कहा। आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब देता जाऊंगा, कर्नल की आवाज सुनाई दी। कर्नल, कल रात को 12 बजे मिलिट्री एयरपोर्ट पर कोई खुफिया ऑपरेशन सर अंजाम दिया जाना है। आप हमें इसके इंतजामात की तफसील बताएं, जॉन की आवाज सुनाई दी। इसके मुतालिक मुझे आज ही हिदायत मौसूल हुई थी। रात को 12 बजे साइना का एक जहाज
खुफिया तौर पर वहां उतरेगा। इसमें से एक बंडल उतारा जाएगा। एयरपोर्ट पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का पहरा होगा। वजारत दिफा का एक आला नुमाइंदा और 4 साइंसदान एयरपोर्ट पर आने वालों का इस्तकबाल करेंगे। एक खुसूसी कार में वजारत दिफा का नुमाइंदा और साइंसदान वो बंडल लेकर पहले वजारत दिफा के दफ्तर जाएंगे और फिर वहां से वो बंडल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ले जाया जाएगा। इस कार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की कारें इसके आगे पीछे होंगी। कर्नल ने तफसीलात बताते हुए कहा, ठीक है कर्नल, दरअसल बात यह है कि हमने वो बंडल हासिल करना है। आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? जॉन की आवाज सुनाई दी। देखिए जनाब, मैंने 2 लाख रुपए सिर्फ तफसीलात बताने के तय किए हैं। इससे ज्यादा मजीद ताउन मेरे बस से बाहर है, क्योंकि मैं खुद भी इस जहाज के करीब नहीं जा सकता। और फिर आप मुझे बतलाइए कि आप वो बंडल क्यों हासिल करना चाहते हैं? कर्नल की आवाज सुनाई दी। इस बात को आप रहने दें, बहरहाल हम खुद ही को इंतजाम कर लेंगे। आप ये रकम का बैग उठाएं और खामोशी से चले जाएं। आपकी बकाया रकम कल रात 10 बजे आपको मिल जाएगी। जॉन की आवाज सुनाई दी। ठीक है, कर्नल ने जवाब दिया। और हाँ कर्नल, जाने से पहले हमारी एक बात सुन लें। अगर आपने इसके मुतालिक किसी को कुछ बतलाया या इशारा भी किया तो ना सिर्फ आपकी बकाया रकम डूब जाएगी, बल्कि आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। डब्ल्यू अपने से गद्दारी करने वाले को ऐसी इबरतनाक सजा देने का आदी है कि इसकी रूह तक बिलबिला उठती है। दूसरे गैर मुल्की ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। डब्ल्यू को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, कर्नल ने जवाब दिया। और फिर दूसरे लम्हे टाइगर को कर्नल केबिन से बाहर आता दिखाई दिया। इसके हाथ में स्याह रंग का ब्रीफकेस था। इसके जाने के बाद टाइगर अपनी जगह से उठा और टहलता हुआ 4 नंबर केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन के सामने पहुंचते ही वो झपट कर अंदर दाखिल हो गया और दूसरे लम्हे मेज के नीचे चिपका हुआ वायरलेस ट्रांसमीटर इसकी जेब में आ चुका था। केबिन से बाहर निकलकर वो भी होटल से बाहर चल दिया। इसने गैर मुल्कियों का ताक़ुब फजूल समझा, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर वो पहले ही देख चुका था। अब वो इमरान को रिपोर्ट देने के लिए बेचैन था।